24 मार्च के पहले मई 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक हिंदुस्तान के सामने सरकार के एजेंडे क्या थे? सीएए, 370, ट्रिपल तलाक, एनआरसी, पॉपुलेशन रजिस्टर, राम जन्मभूमि। ये इनका पोलराइज्ड एजेंडा, कम्युनल एजेंडा मई 2019 से लेकर 24 मार्च 2019-20 तक था। और इस दौरान में आपको मालूम है कि छात्रों के साथ क्या हुआ, कैसे पुलिस का रवैया भी सही नहीं था, चाहे वो जामिया की बात हो, चाहे वो छात्र कहीं और की बात हो, जेएनयू की बात हो। और इसी दौरान में सरकार ने यूएपीए भी लागू किया। और किसके ऊपर लागू किया? संसद में तो यह बताया गया कि हम तो टेररिस्ट के खिलाफ यूएपीए को लागू करेंगे, लेकिन लागू हुआ किस पे? अखिल गोगोई पे, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सफूरा जरगार पे, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, शर्जील इमाम पे, जो जेएनयू में है, मसरत जोहरा पे, जो फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो सरकार का एजेंडा रहा है, ये 24 मार्च को बदल गया। ये महामारी ने सरकार की लाचारी दिखा दी। सबसे दुनिया में सबसे बाहुबली भी इसका सामना नहीं कर सकता। ना कोई यूएपीए के द्वारा उसको कोरोना वायरस को बंद कर सकता है, ना उसको डरा सकता है, ना उसको धमकी दे सकता है, ना एरोगेंस दिखा सकता है। और हिंदुस्तान का जो चेहरा था वो 24 मार्च 2020 के बाद बदल गया, सरकार की वजह से नहीं। जो भाईचारा पे दरार ला रहे थे 24 मार्च से पहले, हिंदुस्तान की जनता ने वही भाईचारा देश को दिखाया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, सड़कों पे जाने वाले माइग्रेंट को खाना खिलाया, उनके लिए व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। धर्म की कोई बात नहीं हुई। जनता ने सरकार को दिखा दिया कि देश को आगे कैसे चलना है। सरकार लाचार है, उनको मालूम नहीं कि हमें करना क्या है। प्रधानमंत्री जी ने पहले साल के कार्यकाल में देश की जनता को चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी की शुरुआत कैसे हुई? He said, "My fellow Indian, I want to ask the Prime Minister that at least now tell us what is your definition of your fellow Indian. Does that definition fit into what happened prior to March 24, 2020? At least now change the way you are handling the future of this country." When I told you about 370, UAPA, NRC, population register, CAA, triple talaq, these were the agendas of the government. Where was the agenda for education? Where was the agenda for healthcare? Where was the agenda of taking care of the concerns of those who are poor? Where was that agenda? It was nowhere to be seen. Had this government in the last 6 years concentrated on the real issues of the people of India, पिछले 6 सालों में अगर हमारी सरकार ने जो देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, दलितों का मुद्दा,
लोगों की आम जीने की समस्याओं का मुद्दा, अगर उस पर ध्यान देते तो शायद हिंदुस्तान आज कहीं और खड़ा होता, लेकिन इनका तो एजेंडा ही नहीं था। और फिर भी प्रधानमंत्री ने अपने चिट्ठी में यह कहा कि दिस इज द गोल्डन चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ये इतिहास। The government tells the court that we are prophets of doom, and future history books will recognize these 6 years of this government as being a harbinger of doom. The Prime Minister talks about protecting democracy. Actually, till March 24, they tried to throttle democracy. He says he got rid of corruption and misgovernance. Demonetization was good governance, according to the Prime Minister. Multi-layered GST was good governance, according to the Prime Minister. I'd like to ask. These agendas prior to March 24 were good governance, were symbols of good governance. I'd like to ask. What is the definition of good governance? I mean, there is a scam in Himachal just recently on PPE where the BJP chief has resigned. The kind of quality PPEs that are now distributed to doctors, it's a matter of shame. And he said he made India a global leader. Global leader of which world? Nepal is showing its eyes at us. China, remember the Prime Minister used to say that why don't you look China in the eye? Why doesn't the Prime Minister look China in the eye at what's happening across the border, across the line of control? At least instead of giving us news from sources, the Foreign Minister, the Defense Minister, to come and address the press and tell us what is the real state of affairs on the borders in this country. He said, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. हाँ, इतना तो मैं मानता हूं, कुछ लोगों का साथ, कम्युनलिज्म, कुछ लोगों का विकास और कम्युनलिज्म का साथ, और खो गया विश्वास.